اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پوری رات میں ابھی چل کر آیا ہوں، رات 11 بجے تقریباً امراوتی شہر کے تاج نگر میں مکتب نور الاسلام کا ایک عظیم الشان اجلاس عام تھا، جہاں پر شہر کے تقریباً تمام علماء اور سیاسی، سماجی، دینی، ملی اور جماعتوں کے ذمہ داران اسٹیج پر موجود تھے اور ہزاروں کا مجمع تھا۔ مکتب نور الاسلام کا یہ اجلاس، یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا۔ مکتب نور الاسلام کے بچوں نے بہت ہی شاندار پروگرام پیش کیا، اور پھر اخیر میں تقریباً 1 گھنٹے کی جو ہے وہ میری تعلیم، ایجوکیشن کو لے کر بڑی اہم تقریر ہوئی، اور اصلاح معاشرہ اور ملک کے حالات کو لے کر بڑی اہم تقریر ہوئی ہے۔ بس دعا کیجیے کہ اللہ قبول فرمائے۔ پھر میں رات بھر چل کر آیا اور ابھی اسٹوڈیو میں پہنچا ہوں، ابھی 10:41 ہو رہے ہیں، اور 12 بجے پھر انشاءاللہ آج میں عمرہ کے لیے نکل رہا ہوں۔ آج میں یہاں سے بذریعہ کار جو ہے وہ ممبئی کے لیے جاؤں گا، پھر کل وہاں سے عمرہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ تو اسٹوڈیو میں آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے، اسکرین پر، کیمرے کے سامنے، لیکن اب یہاں سے 15-16 دن آپ کو خبریں برابر آئیں گی، مکۃ المکرمہ سے بھی آئے گی، مدینہ منورہ سے بھی آئے گی، لیکن وہ آڈیو کی شکل میں آئے گی، آواز کی شکل میں آئے گی انشاءاللہ۔ کعبۃ اللہ میں جا کر میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو بھی اس کے گھر کی حاضری جلد از جلد نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بھی آپ تمام کا سلام پیش کروں گا، اور دعائیں کروں گا کہ اللہ آپ کو وہاں جلد حاضر کی توفیق نصیب فرمائے، طاقت دے، ہمت دے، اللہ صلاحیت دے، استطاعت دے کہ آپ بھی وہاں پر جلد از جلد پہنچے۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی آپ دعا کریں، کیونکہ سفر ہے، میرے لیے دعا کریں کہ یہاں سے جانا اور وہاں تک پہنچنا اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ آپ دعائیں کیجئے، اسپیشلی میں آپ سے خصوصی درخواست کر رہا ہوں، اور دعائیں کیجئے کہ اللہ میرے اس سفر کو، میرے عمرہ کو قبول کرے۔ پوری فیملی کے ساتھ میں جا رہا ہوں، اور آپ کی دعاؤں سے اللہ 4تھی مرتبہ بلا رہا ہے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ ملک ہی نہیں دنیا بھر میں ایک شعر بڑا مشہور ہوا تھا کہ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے،
चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। और इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो वो रो देती है। मुनव्वर राना जो इस शेर के खालिक है, मैं आपको बड़ी अफसोस के साथ ये खबर सुना रहा हूँ कि गुज़िश्ता कल आखिर वो इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह उनके अहले खाना को सब्र जमील नसीब फरमाए। लोग कह रहे हैं कि उर्दू शायरी के एक अहद का, एक दौर का खात्मा हो गया है। अपनी शायरी में माँ को खास मकाम देने वाले हर दिल अजीज शायर हजारों सोगवारों की मौजूदगी में ऐश बाग में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत अहम शख्सियात ने इजहार ताज़ियत श्रद्धांजलि पेश की। नगमा निगार जावेद अख्तर ने जुलूस जनाजा में शिरकत की और उन्हें कंधा दिया। जी हाँ, मैं इसी मिट्टी से उठा था बगोले की तरह और फिर एक दिन इसी मिट्टी में मिट्टी मिल गई। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो सोए किसी दिन तो फिर सोते ही रह जाएंगे। अलविदा मुनव्वर राना। अगले दिन दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, आरएसएस के सरबरा मोहन भागवत का बड़ा नीच और घटिया किस्म का बयान आया, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। जी हाँ, आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने शर्मनाक और घटिया बयान देते हुए कहा है बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर कि अयोध्या में गुलामी की अलामत को गिरा दिया गया, अयोध्या में गुलामी की इमारत को, अलामत को मुनहदिम कर दिया गया। आरएसएस के सरबराह का यह घटिया किस्म का बयान है, जिसको लेकर मुसलमाना ने, हिंद ही नहीं मुसलमाना ने आलम बड़े अफसोस का इजहार कर रहे हैं और करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है इस घटिया बयान ने। और उसने ये भी कहा कि मंदिर बनना खुशी की बात है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है और इस बात को जहन में रखना होगा कि जिस तपस्या की वजह से ये ख्वाब पूरा हो रहा है वो मुस्तकबिल में भी जारी रहे ताकि मंजिल हासिल हो सके। ऐसा करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जब पूरी कौम मुत्तहिद और मजबूत हो जाएगी तो वो दुनिया की तमाम बुराइयों को दूर करेगी और फिर विश्व गुरु बन जाएगी। तो खैर, ये ख्वाब तो कभी भी मोहन भागवत का पूरा नहीं होगा। जी हाँ, और ये मुल्क, प्यारा मुल्क, कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा जो मोहन भागवत का बड़ा ख्वाब है। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है और ये तमाम का मुल्क है। जैसे राहत इंदौरी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो कमाल की बात है कि इस मुल्क पर कब्जा करने की बात वो करते हैं कि जिनके बाप दादा ने कभी इस मुल्क की आज़ादी के लिए खून का कतरा तो क्या पसीना भी नहीं बहाया है। रियासत बंगाल से बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, बंगाल में आप जानते हैं कि बंगाल में दबंग लीडर दीदी ममता दीदी का राज है, जहां पर उन्हें बड़े जबरदस्त अंदाज में मुसलमानों का साथ है और ममता दीदी भी बाकायदा मुसलमानों को बड़ा सपोर्ट करती है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मैं खुद मगरबी बंगाल में पिछले हफ्ते में 2 दिन मैं बंगाल में रहा, वहाँ का हर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, हर धर्म का आदमी ममता दीदी को दिलो जान से चाहता है, क्योंकि वो सबका साथ, सबके विकास पर अमल करती है। वो मोदी की तरह झूठे और मक्कार नारे नहीं लगाती है। खैर, बंगाल में ममता दीदी ने मुसलमानों के त्यौहार पर छुट्टियों का ऐलान कर दिया तो बीजेपी को बड़ी मिर्ची लग गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर शुभेंद्र अधिकारी ने ममता बनर्जी को खुशामद की मलिका कहा, यानी ममता दीदी मुसलमानों को खुश करने के लिए खुशामद कर रही है, ऐसा बीजेपी के लीडर ने यह बयान दिया है। तो लोग कह रहे हैं कि इस्लामी त्योहारों पर ममता दीदी ने छुट्टियों का ऐलान किया तो बीजेपी को बड़ी मिर्ची लग रही है। अगले दिन रियासत मणिपुर, आप जानते हैं कि मणिपुर तकरीबन 7 महीनों से जल रहा है। मणिपुर में सैकड़ों बेकसूर अब तक मारे गए हैं। 7 महीने से मणिपुर जल रहा है, मगर मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को 5 मुल्क घूमने का मौका मिल गया, मगर अपने मुल्क में मणिपुर में जाने का मौका मोदी को अब तक नहीं मिला है। 5 मुल्क घूम के आ गया है।
मणिपुर जल रहा है। खैर, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी की दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो गई। उन्होंने अपने भाषण में बोलते हुए कहा कि मैं मणिपुर में एक बार फिर अमन शांति बहाल करना चाहता हूं। राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 दिन पहले यानी 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई और दूसरे दिन भी मणिपुर में यह यात्रा बड़े जोश और खरोश के साथ जारी रही। दूसरे दिन हजारों लोगों ने सड़क पर निकलकर राहुल गांधी का इस्तकबाल करते हुए हाथ दिखाया और उन लोगों को साबिक कांग्रेस सदर ने यकीन दिलाया कि मैं मणिपुर में एक बार फिर अमन और शांति को लाऊंगा, बहाल करूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी आज तक मणिपुर नहीं पहुंचे। आए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि मुल्क में नरेंद्र मोदी जो बेवकूफ बना के की स्कीमें लाते रहते हैं और मुल्क का अंधभक्त और गोबर भक्त टोला उसमें मगन हो जाता है। बाद में पता चलता है कि उन तमाम चीजों से मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा है। जैसे नोटबंदी की लाए थे, पूरा बेवकूफी का फैसला था। जी हाँ, और भी कई स्कीमें लाए उन्होंने जिसकी वजह से मुल्क तबाह हो गया, जनता तबाह हो गई। ऐसी एक स्कीम उन्होंने लाए थे अग्निवीर। मुल्क में बड़ा शोर मचा था। ओहो, सारे जवानों को लग रहा था कि हमें फौज में भर्ती होने का मौका मिल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निवीर स्कीम ने नौजवानों का फ्यूचर डार्क कर दिया, नौजवानों का मुस्तकबिल अंधेरे में डाल दिया, तारीकी में डाल दिया और मुस्तकबिल को खराब कर दिया। अखिलेश यादव ने पीर के दिन कहा कि चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि साल 2027 तक 1 लाख फौजियों की कमी हो जाएगी। अग्निवीर इसके निजाम जानबूझकर लाया गया ताकि पिछड़े, दलित और अकलियतों का स्टेटस फौज में भर्ती होने के बाद बेहतर न हो सके। बीजेपी अग्निवीर स्कीम लाकर नौजवानों का मुस्तकबिल खराब किया है। 4 साल की फौज की नौकरी कौन जवान करना चाहेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अग्निवीर स्कीम के हक में नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले जैसी तकर्रुरी किसके समर्थन में है जिसमें नौजवानों को पूरी नौकरी और पूरी पेंशन मिलती थी। नेताजी ने शोहदा को जो एहतराम दिया वो एहतराम अग्निवीरों को नहीं मिल रहा है। नौजवानों को बीजेपी को वोट देना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, मेरे जितने सीनियर और जूनियर है वो सभी फौज में रहे हैं। मैं जानता हूं और समझता हूं कि अग्निवीर स्कीम ने हमारे मुल्क के जवानों के मुस्तकबिल, उनके फ्यूचर को कैसे बर्बाद कर दिया। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, देखिए आप किस तरीके से यूं समझिए कि माहौल खराब हो रहा है। इस वक्त खबर आ रही है कि राम मंदिर के बाहर कांग्रेस के लीडरों के साथ झड़प हो गई और कांग्रेस पार्टी का झंडा भी फाड़ दिया गया। पुलिस खामोश तमाशा देखती रही। अयोध्या में राम मंदिर के बाहर रामलल्ला के दीदार के लिए आए हुए कांग्रेसी लीडरों से कुछ लोगों की झड़प हो गई। कांग्रेसी लीडरों के साथ बदतमीजी की गई। कांग्रेस का झंडा छीन कर फाड़ दिया गया। कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया तो उन्हें भगा दिया गया। इस दौरान कुछ फासले पर मौजूद पहले तो पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही और जब मामला आगे बढ़ गया तो झंडा छीनने वाले लोगों को रोकने की कोशिश की गई। यह वाकया ऐसे वक्त में पेश आया जब कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय के साथ पार्टी लीडरों का एक ग्रुप रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचा। खैर, इस वाक़े से कांग्रेसियों में शदीद गुस्सा फैल गया है और लोग अब ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर पर अकेला हक जताकर 2024 का इलेक्शन जीतने की तैयारी में लगी हुई है और राम मंदिर का अकेले सेहरा पहनना चाह रही है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आए दिन बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र से। जी हाँ, उद्धव ठाकरे जो बाल ठाकरे के सपूत हैं उनको लेकर खबर आ रही है कि उनकी जान को खतरा है। ऐसा कंट्रोल रूम को फोन आया है और गुजरात से मुंबई सफर करने वाले एक मुसाफिर ने यह दावा किया कि मैंने चंद मुसलमानों को बात करते सुना है कि वो मोहम्मद अली रोड पर
ठहर कर मातोश्री के बाहर बड़ा हमला करेंगे। महाराष्ट्र के कंट्रोल रूम को ऐसी कॉल आई। शिवसेना पार्टी के सरबराह उद्धव ठाकरे मातोश्री की रिहायशगाह के बाहर एक बड़ा हमला होने वाला है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की जान को खतरा है। इस कॉल के बाद मुंबई पुलिस और सिक्योरिटी सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई गुजरात ट्रेन से सफर करने वाले एक शख्स ने यह कॉल करके बताया कि 4-5 मुसलमान लोगों को आपस में गुफ्तगू करते हुए मैंने सुना है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये भी मामला ऐसा ही हो सकता है जैसे कुछ हिंदू आतंकवादियों ने मुसलमान बनकर मुसलमानों की आईडी दिखाकर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और मुसलमानों का अच्छा रिश्ता है और महाराष्ट्र का माहौल बड़ा प्यारा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी एक किस्म की शैतानी हरकत हो और मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश हो। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मस्जिदों को आबाद रखिए, कुछ लोग हमारा वजूद मिटाना चाहते हैं। उन्होंने एक इजलास से खिताब करते हुए मसाजिद की हिफाजत की अपील की और कहा कि इस वक्त हुक्मरान मसाजिद को तबाह करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि मसाजिद की अहमियत को कम किया जाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर का यह बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और वो मुसलमानों से अपील कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हुक्मरान चाहते हैं कि मुसलमानों को इस्लाम से कैसे दूर किया जाए, इसलिए मसाजिद की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। हम पहले ही एक मस्जिद खो चुके हैं, फिर भी न समझे तो कुर्सियों पर बैठे लोगों की नजरें हम पर जमी हुई है। वो जानते हैं कि मुसलमानों को मस्जिद से निकालेंगे तो वो निहत्ते हो जाएंगे। वीडियो में वैसी लोगों से कह रहे हैं कि जब भी मस्जिद जाएं अकेले न जाएं, अपने बेटे को साथ ले जाएं। मसाजिद में सिर्फ जुमा के दिन नहीं बल्कि हर वक्त नमाज पढ़नी चाहिए और अपनी मस्जिदों को आबाद रखना चाहिए। ये वो वक्त है जब हम उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हमारे वजूद को तबाह करना चाहती है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के वजीर आला CM एकनाथ शिंदे का एक डेलीगेशन, एक वफ्द 50 लोगों का स्विट्जरलैंड का दौरा करने जा रहा है। अब सरकारी खर्चे को लेकर, यानी सरकारी खर्चे से ये 50 लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे, इसको लेकर आदित्य ठाकरे ने सीधा वजीर आला CM एकनाथ शिंदे को निशाना बनाया है। स्विट्जरलैंड में मुनक्किदा वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में वजीर आला एकनाथ शिंदे के साथ एक वफ्द जा रहा है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के MLA आदित्य ठाकरे ने इस पर हुकूमत पर हमला करते हुए तनकीद की कि पहले 50 खोके, अब 50 लोग जा रहे हैं। गैर कानूनी वजीर आला गैर कानूनी तरीके से वहां स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और 50 लोगों को लेकर जा रहे हैं। 50 में से 10 को वजारत खारिजा और वजारत खजाना ने इजाजत दी है। क्या आपने बाकी लोगों की इजाजत ली है? ऐसा सवाल आदित्य ठाकरे ने उठाया है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हां, कांग्रेस इस बार बजट इजलास में फिर मणिपुर का मामला उठाएगी। आपको याद होगा कि इससे पहले भी मणिपुर के मामले में सभा बिल्कुल मुअत्तल कर दी गई थी, कैंसिल कर दी गई थी, क्योंकि मणिपुर को लेकर काफी हंगामा हुआ था। क्योंकि मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी ने बड़ी बेशर्मी के साथ साथ 5 महीने से चल रहे मणिपुर के ताल्लुक से कुछ नहीं कहा था। कांग्रेस ने मणिपुर को लेकर काफी हंगामा किया था और अब खबर आ रही कि एक बार फिर बजट इजलास में मणिपुर का मामला कांग्रेस उठाएगी। कांग्रेस का यह कहना है कि नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को मणिपुर के लोगों से बात करनी चाहिए, मगर वजीर आजम और अमित शाह में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मणिपुर जाए और मणिपुर के लोगों से बात करे।